now, viewers, it's time to shift our focus to Uttar Pradesh, where massive protests have broken out in Lucknow outside Akhilesh Yadav's residence. A massive showdown has erupted after the Samajwadi Party workers have dragged and detained the police personnel after party chief Akhilesh Yadav has alleged that BJP has installed tin sheets in front of Jayaprakash Narayan International Center to prevent his entry. Akhilesh Yadav has visited the JP Nick on Thursday night to mark the birth anniversary of socialist leader Jayaprakash Narayan. Today, the BJP has hit back at Akhilesh Yadav, calling his action childish, and has taken a dig at the Samajwadi Party and even called him as a fused transformer. All right, viewers, now we can see in the visuals that that are there on your screen at this point of time that there is a massive showdown which can be seen erupting on the streets of Lucknow and a slugfest over the socialist icon after the birth anniversary is concerned. There is high drama that can be witnessed with the crowds in huge number gathering as in the backdrop of the comments that have been made by Akhilesh Yadav. As Akhilesh garlands JP Narayan's statue on the streets, but he was prevented from doing so. The Samajwadi Party takes on Yogi Adityanath on socialist leader's birth anniversary. This is in fact a spar between the Yogi government and Akhilesh Yadav. All right, joining me from the live location in Lucknow is my colleague Ravi Kumar. रवि, इस समय क्या हालात हैं लखनऊ की सड़कों पर, जहां पर जेपी नारायण सेंटर के बाहर ये विवाद हुआ है और अभी कितने लोग इकट्ठा हुए हैं? अगर आप ग्राउंड पे हैं तो हमें प्लीज लेके जाइए वहां आवाज पे, जहां ग्राउंड पे ये सारा मुद्दा खड़ा हुआ है। Ravi, if you can hear me correctly. All right, viewers, now in fact it is to be seen in perspective that there is high voltage drama that's unfolding on the street of Lucknow, where Samajwadi Party versus the Yogi government on garlanding the statue of JP Narayan. In fact, at this point of time on his birth anniversary, he's a socialist icon. All right, viewers, now to get more details and an overview of what's happening and unfolding on the ground, we have Mohammad Shabab live from Lucknow. Mohammad, Shabab जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी एक विवाद खड़ा हो रखा है जेपी नारायण स्टैचू सेंटर के बाहर, जहां पे अखिलेश यादव को अलाउड नहीं थी एंट्री। इस समय क्या हालात हैं ग्राउंड से, बताइए। देखिए, इस समय मैं अखिलेश यादव के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये अखिलेश यादव का घर है, जहाँ से उनको निकलकर JPNIC जो तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर उन्हें जाना था। जयप्रकाश नारायण की आ चुकी बर्थ एनिवर्सरी है, वहाँ पर उन्हें फूल चढ़ाने थे, माल्यार्पण करना था, लेकिन अखिलेश यादव वहाँ ना जा सके। सबसे पहले देखिए, उनके घर के बाहर इस तरीके के बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और ये बैरिकेड्स फिलहाल इस समय थोड़ा सा सन्नाटा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्यक्रम था वो खत्म हो चुका है। अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की एक ऑप्शनल मूर्ति, एक सब्स्टिट्यूट मूर्ति यहाँ पर मंगाई और उसके ऊपर माल्यार्पण किया और उसके बाद वो यहाँ से अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने वोटरों के साथ जो है वो पार्टी ऑफिस चले गए हैं। लेकिन चूंकि आज लगभग 3-4 घंटे का बड़ा पॉलिटिकली ड्रामा लखनऊ में देखने को मिला। अखिलेश यादव के घर के बाहर ये इस तरीके से बैरिकेड्स थे, लगभग 12 थानों की फोर्स यहाँ पर मौजूद थी, पुलिस थी, यूपी पुलिस, PSC, RF, तमाम जो पुलिस की विंग्स होती हैं वो थी। आप देखिए, बसें लगाई गई थी कि अगर ज़रूरत पड़े समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की तो वो उनको लेकर जाया जा सके। वज्र यंत्र जो दंगा नियंत्रण वाहन होता है वो भी देखिए यहाँ पर लगा हुआ था, भीड़ नियंत्रण करने के लिए जो लगाया जाता है वो भी था। यानी कि पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ थी और अखिलेश यादव भी आज पूरी तैयारी के साथ थे कि आज जो है वो जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर वो माल्यार्पण करके रहेंगे। असल में ये मामला शुरू कैसे हुआ, इसको ये भी समझिए। कल अखिलेश यादव सैफई में थे, मुलायम सिंह यादव की डेथ एनिवर्सरी थी, वहां पर कार्यक्रम चल रहा था। अखिलेश यादव ने जब वहां के कार्यक्रम को खत्म किया तो आज
जयप्रकाश नारायण की जयंती, जो उनका बर्थ एनिवर्सरी थी, उस पर उन्होंने कहा कि हम सुबह 10:30 बजे फ्राइडे को जयप्रकाश नारायण का जो JPNIC है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर जो है, वहां पर जाएंगे और वहां पर उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाएंगे, उनको जो है वो याद करेंगे। ये बात जैसे ही लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के कानों तक पहुंची, जैसे ही अखिलेश यादव का ये ट्वीट उन्हें दिखा, आनन फानन में फौरन वो JPNIC को बंद करने लगे। वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, जो गेट था उस पर लंबी लंबी टीन लगा दी गई। वो इस वजह से क्योंकि पिछले साल भी जब जयप्रकाश नारायण की जो एनिवर्सरी थी, जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, उस पर अखिलेश यादव 8 फुट ऊंचा गेट फांद गए थे। गेट फांद करके वो अंदर चले गए थे, वहां पर उन्होंने फूल चढ़ाए थे। तो इस बार कुछ ऐसी हैपनिंग ना हो, उसके लिए जिला प्रशासन जो था उसने वहां पर बैरिकेड्स लगा दिया और उसको पूरे गेट को बंद कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव को जैसे ये पता चला कि JPNIC में ऐसा चल रहा है, वहां पर ये हैपनिंग हो रही है, अखिलेश यादव सैफई से सीधे रात में करीबन 11:30 बजे के आसपास JPNIC पहुंच गए। JPNIC पर पहुंचने पर लोकेशन पे अफसरों को भी ये शायद इस बात का एहसास नहीं होगा, उनको भी ये इल्म नहीं होगा कि अखिलेश यादव इतनी रात में यहाँ आ सकते हैं। अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे, वहां पर मजदूर काम कर रहे थे, वो टीन लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो है हम लोगों को अंदर नहीं जाने देना चाहते, JPNIC में ये लोग बिल्डिंग को बेचना चाहते हैं, ये बताना नहीं चाहते क्यों नहीं जाने दे रहे हैं हमको अंदर, इस तरीके की बातें उन्होंने कही। उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन को यह पता चल गया कि अब अगले दिन यानी कि आज हैपनिंग होना तय है। लिहाजा रातों रात अखिलेश यादव का घर, उनका पार्टी ऑफिस, शिवपाल यादव का पार्टी ऑफिस, समाजवादी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनका आवास, वो सब बिल्कुल बैरिकेड्स कर दिया गया, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया, किसी को कहीं भी जाने की इजाजत नहीं। शिवपाल यादव जो इस समय सैफई में थे, वो आनन फानन में सैफई से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये चाह रहा था कि किसी भी तरीके की बहुत मिस हैपनिंग ना हो, किसी भी तरीके से सड़कों पर समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ना आए। चूंकि अखिलेश यादव का ये डायरेक्टली कॉल था, लिहाजा ये बात तय थी कि अखिलेश यादव की इस कॉल पर पूरे प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो पहुंचेंगे। और हुआ भी वही। सुबह 8 बजे से उनके आवास के बाहर बैरिकेड लगे होने के बावजूद हजारों की तादाद में जो उनके कार्यकर्ता थे वो यहां पर पहुंचने लगे। धीरे धीरे उनके पार्टी ऑफिस से होते हुए लोग छुपते छुपाते जो है अखिलेश यादव के घर के बाहर जमा होने लगे। 10:30 बजे का टाइम जो था वो तय था जब अखिलेश यादव को JPNIC जाना था। ऑलराइट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से भी फौरन जो पुलिस के ऑफिसर्स थे वो अखिलेश यादव से बात करने पहुंचे। उन्होंने उनको समझाया कि अगर आप सड़क पर आएंगे तो कई चीजें अंडर कंट्रोल हो सकती हैं और इसलिए आप इन चीजों को यहां पर जो है वो खत्म कर दें। शायद अखिलेश यादव की जो भी उनसे बात हुई हो, उसके बाद अखिलेश यादव ने एक टेम्परेरी JP की एक स्टैचू मंगाई जिसको यहां पर रखा गया और अखिलेश यादव अपने आवास से निकले और उस पर माल्यार्पण किया। हालांकि उन्होंने BJP पर जमकर कमेंट किए, योगी आदित्यनाथ पर कमेंट किए, BJP सरकार पर कमेंट किए और उन्होंने कहा कि ये लोग डरते हैं समाजवादियों से और ये हमको वहां नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि ये उस बिल्डिंग को बेचना चाहते हैं। इस तरीके की उन्होंने बात की। फिलहाल यहाँ का कार्यक्रम अभी खत्म हो गया है। अखिलेश यादव यहाँ से अपने पार्टी ऑफिस चले गए हैं। जो कार्यकर्ता थे वो उनके साथ इस समय पार्टी ऑफिस में हैं जहाँ पर बातचीत उनसे चल रही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.